ٹھیک ہے جانا، ہم بات کرتے ہیں، ابھی تم رمشا کے ساتھ کمرے میں جاؤ۔ بازل کسی کی بھی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر معصومہ کو بازوؤں سے تھام کر محبت سے چور انداز میں گویا ہوا، جبکہ معصومہ اس مرتبہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ مجھے بتائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مرشد صاحب؟ معصومہ اس کی محبت پسے پش ڈالتی ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی، جبکہ باقی سب نے حیران کن تاثرات لیے معصومہ کو دیکھا۔ ان میں سے کسی نے بھی بازل کی کبھی بات رد کرنے یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی، اور اگر کوئی ایسی جرأت کرتا تو بازل شیرازی اس کا حشر کر دیتا۔ مگر آج معصومہ کے سامنے کس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ محبت جتا رہا تھا۔ چلو میں لے چلتا ہوں روم میں، پھر تھوڑی دیر تک گھر چلیں گے۔ بازل اب معصومہ کا ہاتھ تھام کر اسے خود کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ رات کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ روشنی میں معصومہ کو اس کے ساتھ یہاں سے نکلتے ہوئے کوئی نہ دیکھ لے۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی، اگر آپ آج کچھ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں رہنا چاہتی۔ بھیا کو کال کریں، میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ معصومہ بازل کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتی خاصی چڑچڑی ہو کر بولی تھی، جبکہ اس مرتبہ بازل نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی غرض سے جبڑے سختی سے بھینچے۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ معصومہ، بازل کی آواز ہال میں گونجی تھی۔ بازل کی غراتی آواز سن کر ہر کوئی کانپ گیا۔ باسط نے بے بسی سے دونوں کو دیکھا، جبکہ معصومہ کا وجود بھی لرز گیا۔ مجھے جواب چاہیے آپ سے، سنا آپ نے؟ معصومہ اپنی آواز اور وجود کی کپکپاہٹ پر قابو پاتی بازل کی سختی سے بھینچی ہوئی مٹھیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے بولی۔ مگر اس سے پہلے بازل کچھ کہتا، معصومہ سر پر ہاتھ رکھتی لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے وہ بری طرح زمیں بوس ہوتی، بازل نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید کیا۔ جانا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو۔ ایک ہاتھ معصومہ کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر لہجے اور انداز میں پریشانی لیے بول رہا تھا۔ باقی سب بھی اچانک معصومہ کے بے ہوش ہونے پر گھبرا گئے، جبکہ بازل اب معصومہ کو باہوں میں بھرے ہال میں موجود ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ اچانک معصومہ کے بے ہوش ہونے پر اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ سب اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ رمشا، ڈاکٹر کو بلاؤ، ہری آپ! اپنے پیچھے آتی رمشا کو کہتا وہ معصومہ کو اس سادہ سے کمرے میں لاتا سنگل بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر ہما روم میں داخل ہوئیں تو بازل پریشان سا معصومہ کا ایک ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کا بولتا وہ کمرے سے باہر گیا۔ اب ہال میں باسط، رمشا اور وشال پریشان کھڑے تھے۔ بازل انہیں ایک نظر دیکھتا خود بھی پریشانی سے چکر کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نکلیں تو بازل جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ معصومہ کیسی ہے اب؟ اچانک کیوں بے ہوش ہو گئی؟ بازل جلدی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بھی سیکرٹ آفیسر تھی جو ہمیشہ بازل کے کام آتی تھی۔ سر یو ڈونٹ وری، بی پی لو ہو گیا تھا آپ کی مسز کا، بٹ اس کنڈیشن میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، ان کو اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے، ابھی وہ ٹھیک ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہما مسکرا کر بولی، جبکہ بازل کا دماغ تو ان کی ایسی کنڈیشن والی بات اٹک گیا تھا۔ کیسی کنڈیشن؟ بازل کے جلدی سے پوچھنے پر ڈاکٹر ہما نے اسے حیران ہو کر کہا، میجر یو نو دیٹ شی از 3rd month پریگننٹ۔ ڈاکٹر ہما حیرت سے پوچھ رہی تھی، جبکہ بازل کا دماغ 3 مہینے پر ٹھٹک گیا۔ آر یو شیور ڈاکٹر؟ بازل نے تصدیق چاہی تھی، کیونکہ اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ معصومہ 3 مہینے تک کیسے یہ بات اس سے مخفی رکھ سکتی ہے۔ یس میجر۔ ڈاکٹر ہما کے ساتھ ساتھ باسط، رمشا اور وشال بھی بازل کی بے خبری پر حیران ہوئے تھے، جبکہ بازل نے ان کی بات سنتے ہی کمرے کی جانب قدم بڑھائے جہاں معصومہ موجود تھی، کیونکہ ابھی صرف بازل کو معصومہ سے اس کے سوال کے جواب چاہیے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو معصومہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بازل نے اس کی کلائی جکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ تم یہ بات جانتی تھی؟ بازل کی دھاڑتی آواز کمرے میں گونجی تھی، جبکہ معصومہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہ بازل کا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ معصومہ نے نگاہیں بازل کی گردن کی تنی رگوں کی سمت کرتے ہوئے جواب دیا، کب سے؟ بازل نے اگلا سوال بھی فوراً کیا تھا۔ معصومہ نے اپنی پلکیں اٹھا کر بازل کی بے تحاشا سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ کافی دن سے، وہ لرزتے وجود کو قابو کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر بازل نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ اب بازل یکدم طیش میں آیا تھا اور اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر پہلے شیشے کی میز کو توڑا، پھر دیوار پر ہاتھ مارنے لگا۔ اس کی اس جارحانہ کارروائی پر معصومہ دل و جان سے کانپ اٹھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بازل شیشہ اور دیوار اس کے وجود کو تصور کرتا اپنا غصہ ان چیزوں پر نکال رہا ہے۔
आंखें बंद करती वो बेड पर बैठकर बेआवाज़ रोने लगी, जबकि बाजिल के हाथ से खून बहता हुआ फर्श को रंग रहा था, मगर वो रुका नहीं और मासूमा को उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं हुई। आफरीन है बाजिल शिराजी तुम पर, इतने महीनों से अपनी बीवी का एतमाद तक नहीं जीत सके तुम। बाजिल अब मेज़ उठाकर जोर से फर्श पर मारता हुआ दहाड़ा, जबकि मासूमा के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। मेजर बाजिल शिराजी नाम है मेरा, एक सीक्रेट ऑफिसर भी हूँ मैं। कुछ दिन सब्र कर लेती तुम, अपने मिशन के उसूलों की वजह से फ़िलहाल हकीकत नहीं बता पा रहा था तुम्हें, मगर आज तो वैसे भी तुमने यहाँ हर हद पार कर दी। मासूमा को बगैर देखे बाजिल धाड़ा था और साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर ज़मीन पर दे मारा, जबकि मासूमा के कानों में बाजिल के अल्फाज गूंज रहे थे। वो अब अपना रोना भूलकर बेयकीनी के आलम में बाजिल को देख रही थी। कोई गैर कानूनी, कोई घटिया काम नहीं करता मैं, बल्कि पाक फौज के लिए काम कर रहा हूँ। वो फिर से बुलंद आवाज़ में बोला था। अब मासूमा अपनी कमकली पर आंसू बहा रही थी। शर्मिंदगी के बाइस वो बाजिल से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। अब बाजिल मासूमा की जानिब बढ़ा। जब मासूमा सहम कर बेड पर सिमट गई थी, बाजिल ने उसे बाजू से थाम कर अपने सामने खड़ा किया। क्यों ये बात छुपाई थी? लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता वो उसके रोने के बाइस सुर्ख हुए चेहरे को देखता हुर्राया, जबकि मासूमा महज सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मासूमा को खामोश पाकर वो मजीद इश्तियाल में आया। क्यों मासूमा, क्यों मेरे बच्चे को गुनाह की तरह छुपाया तुमने मुझसे? डैम इट, औलाद है मेरी, खून है मेरा, क्या ये बात सबसे पहले जानने का हक मुझे नहीं था? 3 महीने तक ये बात छुपाई तुमने मुझसे? बाजिल धाड़ा था, जबकि उसकी बात सुनकर मासूमा ने तड़प कर उसे देखा। मुझे शाटा, जस्ट शाटा। मासूमा ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जब बाजिल ने उसे डपट दिया तो वो मजीद सहम गई। दूर हो जाओ, फ़िलहाल मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर एक और लम्हा मेरे सामने खड़ी रही ना तो खुदा की कसम जान ले लूँगा तुम्हारी। जाओ। बाजिल फिर से धाड़ा था। मासूमा ने सख्ती से अपने आंसू साफ किए और बाजिल को बेबसी से देखती कमरे से बाहर निकल गई। मासूमा रोती हुई कमरे से बाहर निकली तो सामने बासित, रिमशा और विशाल भी परेशान खड़े थे। मासूमा ने लगातार बहते अपने आंसुओं को एक बार फिर सख्ती से हाथों की पोंछ से साफ किया और चादर को सर पर दरुस्त करने लगी। भाभी प्लीज़ आप रोएं नहीं और यहाँ बैठें प्लीज़। बासित मासूमा के रोने के बाइस सुर्ख हुए चेहरे को देखकर एक कुर्सी की जानिब इशारा करता हुआ इसरार कर रहा था, जबकि मासूमा रिमशा और विशाल को एक नज़र देखती खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। फिर बासित ने रिमशा को इशारा किया तो वो हॉल से बाहर किसी काम के घर से बाहर निकल गई। बासित काफ़ी हद तक मामला समझ चुका था, मगर बोला कुछ नहीं। मैम प्लीज़ टेक इट। थोड़ी देर के बाद ही रिमशा जूस का गिलास थामे मासूमा के सामने करती मुस्कुरा कर बोली तो मासूमा ने आंसुओं भरी आंखों से रिमशा के हाथों में पकड़े गिलास को देखा और फिर बासित को देखा। प्लीज़ जूस पिएं आप और रोएं नहीं, भाई का गुस्सा ऐसा ही है। बासित रिमशा के हाथ से गिलास लेकर खुद मासूमा के सामने करते हुए गोया हुआ तो मासूमा ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर गिलास थाम लिया और लबों से लगा लिया। चंद घूंट पीने के बाद उसने गिलास मेज़ पर रख दिया, मगर अब मासूमा की आंखें बिल्कुल खुश्क हो गई थीं। अब वो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी गैर मरई नुक्ते को तके जा रही थी। बासित ने एक सर्द आह भरकर नज़र मासूमा की पथराई हुई आंखों पर डाली और दूसरी निगाह उस बंद कमरे के दरवाजे पर जहां बाजिल था। बासित समझ सकता था कि वो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि दोनों आज इस अजियत से गुजर रहे हैं। मासूमा के आंसू तो रुक चुके थे, मगर दिल में मलाल बढ़ता जा रहा था। उसने हमेशा गुस्से में बाजिल को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ दी थी। वो कितना ख्याल रखता था उसका और कितनी इज्जत और मान देता था, मगर हर बार वो उस पर शक करती थी। और वजह ये भी थी कि बचपन से ही बाजिल दादा जान के करीब रहा और मासूमा को बाजिल से हमेशा इसीलिए चिढ़ होती थी कि दादा जान बस उसी से प्यार करते हैं। फिर शादी के वक्त भी बाजिल को लेकर उसके दिल में कितने वहम, शक और शुबहात थे, कितनी बदगुमानियाँ थी। बाजिल हमेशा इज्जत और मोहब्बत देकर उसे एहसास तो दिलाता था, मगर फिर भी हालात हमेशा बाजिल के खिलाफ रहे थे। वो बाजिल की बीवी थी और कौन सी बीवी अपने शोहर का बगैर बताए दिन रात घर से बाहर रहना बर्दाश्त करती है। हाँ, मगर उसने बाजिल से बहुत बार तल्ख कलामी की थी, जिसका उसे हमेशा अफसोस होता था। मगर ये भी हकीकत थी कि उन दोनों के मिजाज में गुस्सा और ज़िद थी और हमेशा बाजिल अपना गुस्सा ज़ब्त करता था, जबकि वो खुद तो ज़ुबान के ज़रिए गुस्सा बाजिल पर निकाल देती थी। मगर बाजिल कई मरतबा तहम्मुल का मुजाहिरा कर चुका था। इस बार अगर मासूमा की गलती बड़ी थी तो बाजिल भी कसूरवार था। ज़्यादा तकलीफ़ मासूमा को ये बात दे रही थी कि वो अपनी ज़िद में आकर बाजिल को 3 माह तक इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं बता सकी थी।
2 से 3 घंटे गुजर गए थे। मासूमा को एक ही सिमत कुर्सी पर बैठे हुए जिस्म उसका अकड़ गया था, मगर वो गुमसुम सी बैठी उसी कमरे के बंद दरवाजे को देखे जा रही थी। अब तो अंधेरा भी फैल रहा था, मगर बाजिल कमरे से बाहर नहीं निकला था। एक तरफ लैपटॉप पर निगाहें जमाए बासित बेबस सा बैठा हुआ था। बार बार मासूमा का अफसरदा चेहरा देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, मगर तसल्ली देने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता था। दरवाज़ा खुलने की आहट पर हॉल में मौजूद चारों नफूस की तवज्जो उस जानिब मबजूल हुई। बाजिल अपने बूढ़े बालों को हाथ की उंगलियों से सेट करता मासूमा की जानिब बढ़ रहा था। मासूमा भी पूरी तवज्जो से उसी को देख रही थी। स्याह पैंट शर्ट पहने, दाएं हाथ पर रुमाल बंधा हुआ था। यकीनन ये खून रोकने की कोशिश की गई थी। चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती और आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। मासूमा को जाने क्यों एक बार फिर शिद्दत से रोना आया, जबकि हॉल में मौजूद बासित, रिमशा और विशाल बाजिल को देखते ये तरामन खड़े हो गए। बाजिल अपनी निगाहें मासूमा पर जमाए उसकी जानिब बढ़ा तो मासूमा सहम गई। रात हो गई है, अब चलें जाना। मासूमा के नज़दीक पहुंचकर अपने बाएं हाथ से मासूमा का दायां हाथ थामता वो अपनी सुर्खी माइल आंखों से मासूमा की आंसुओं से भरी आंखें देखता हुआ बेहद मोहब्बत से बोला था, जबकि बाजिल के अंदाज पर मासूमा समेत सबने हैरान कुन तासुरात लिए बाजिल को देखा। रिमशा, अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल इसी टाइम मीटिंग रखते हैं, सबको बता देना, बाय। मासूमा की हैरत से फैली आंखों को नज़रअंदाज करता वो उसका हाथ थामे चलने लगा था, और फिर रिमशा को बगैर देखे कहते हुए वो मासूमा को लिए हॉल से निकल गया। पीछे रिमशा और विशाल ने पहले हैरत से बाजिल और मासूमा की पुश को देखा और फिर बासित को। शी इज़ सच अ लकी गर्ल। मासूमा और बाजिल के निकलने के बाद विशाल मासूमा पर रश्क करती हुई बोली तो बासित और रिमशा का भी सख्ता टूटा। उन तीनों को ही इतना सब होने के बाद बाजिल के इतने जल्दी ठंडे हो जाने पर खुशगवार हैरत हो रही थी। सर इश्क करते हैं मैम से? आई एम 100% श्योर, रिमशा मुस्कुराकर यकीन से बोली थी, जबकि बासित और विशाल ने मुस्कुराकर उसकी तायद में सर हिलाया। बाजिल ने मासूमा को गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आराम से बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मासूमा थोड़ी थोड़ी देर बाद तिरछी निगाहों से बाजिल के स्पार्ट चेहरे को देखती थी, मगर बाजिल को मुखातिब करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। बाजिल भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, एक नज़र भी वो मासूमा पर डालना गवारा नहीं कर रहा था। इस दौरान बाजिल ने जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और कान से लगा लिया। वो कॉल पर किसी से अच्छी गायनी डॉक्टर का पूछ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आगे रुकी। बाजिल पहले बाहर खुद निकला, फिर मासूमा का हाथ थाम कर बाहर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ने लगा, जबकि मासूमा भी उसकी तकलीद में चलती आगे बढ़ने लगी। डॉक्टर से चेकअप के बाद वो फिर गाड़ी में आ बैठे थे, मगर मासूमा बाजिल के हाथ पर बंधे रुमाल को बार बार देख रही थी। उसमें बाजिल को अपने हाथ की बैंडेज करवाने का कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मासूमा की बार बार अपने हाथ पर उठती नज़रों को बाजिल बखूबी समझ रहा था। यू डोंट वरी जाना, मैं खुद बैंडेज कर लूँगा। वो एक नज़र मासूमा के मुरझाए हुए चेहरे को देखता धीमी आवाज़ मगर सर्द अंदाज में बोला तो मासूमा सटपटा गई और फ़ौरन निगाहें चुरा गई, जबकि बाजिल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए गहरा सांस लिया। बाजिल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही शीरीन साहिबा को मासूमा की प्रेगनेंसी की खबर दे चुका था और जल्द घर आने का भी बता चुका था। वो दोनों जब घर पहुंचे तो शिराजी हाउस में जश्न का समा था। जाने बाजिल ने सबसे क्या कहा था जिसके बाइस किसी ने मासूमा को मुबारकबाद के सिवा मजीद कोई सवाल ना पूछा। दादा जान और दादी जान कई बकरे मासूमा के सदके के दे चुके थे। हर कोई मासूमा की तवक्को से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। उन सबको इतना खुश देखकर मासूमा को बेहद शर्मिंदगी हो रही थी कि वो इतनी बड़ी बात उन सबसे क्यों छुपाए हुए थी। कुछ देर में खाना खाने के बाद बाजिल उसे लेकर कमरे में आ गया था, मगर बेड पर बिठाने के बाद वो खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, जबकि मासूमा के रुके आंसू फिर से बहने लगे थे। जब बाजिल फ्रेश होकर बाहर निकला तो मासूमा बेड की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। बंद आंखों से भी उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बाजिल तौलिया रखते हुए मासूमा की जानिब बढ़ा और बेड की दूसरी सिमत आकर मासूमा के करीब लेट गया तो मासूमा ने फ़ौरन अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। जाना, रोना बंद करो प्लीज़, बाजिल मासूमा को बाजू से पकड़कर अपने करीब करता नरम मगर मुस्तहकम अंदाज में बोला। अब मासूमा अपना ज़ब्त खो बैठी और बाजिल के शाने पर सर रख के दोनों हाथ उसके सीने पर जमाई शिद्दत से रोने लगी। बाजिल अब नरमी से उसके बाल सहला रहा था। कई लम्हे यूं ही वो उसके कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रोती रही थी। फिर बाजिल उसे खुद से जुदा करता उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर देखने लगा। आंखें और नाक रोने के बाद शदीद सुर्ख हो रहे थे, जबकि अब वो सर और निगाहें झुकाए बेआवाज़ रो रही थी।
जाना प्लीज़ अपने हाथों की उंगलियों के पोरों से मासूमा के बहते आंसू साफ करता। वो उसके माथे पर लब रखता मोहब्बत से बोला, वो प्लीज़ मुझे माफ़, वो बाजिल की आंखों में देखते लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। मगर बात मुकम्मल करने से पहले वो फिर शिद्दत से रोने लगी। जाना तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसी तरह मेरे अमल का रद्द अमल दिया तुमने, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत गुस्से में बात कर रहा था तुमसे, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरा रद्द अमल देता। प्लीज़ रो मत, प्लीज़ जाना। बाजिल अब मासूमा के हाथों को अपने लबों से लगाकर धीमी आवाज़ में कह रहा था, जबकि मासूमा उसे बेयकीनी से देख रही थी। हम दोनों हम सफ़र हैं, हम राज हैं, मगर हम अपने हम राज से अपना ही राज छुपाने लगे थे। एक मसलहत के तहत किया गया था ये सब कुछ। मगर बहरहाल तुम शर्मिंदा मत हो और ना माफ़ी मांगो, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं थी। हाँ, बहुत बोल जाती हो तुम, मगर गलत नहीं हो तुम। एक्चुअली हम दोनों में एक जैसी आदत हैं, इसलिए तजाद रहता है। बहरहाल आज मैं मेजर बाजिल शिराजी अपनी बीवी मासूमा शिराजी से वादा करता हूँ कि आइंदा कुछ भी हो जाए, मगर कभी भी अपनी जाना से सख्त अंदाज में बात नहीं करूँगा। मासूमा के चेहरे को अपने चेहरे के करीब करता वो नरमी से मजबूत अंदाज में कह रहा था, आप बहुत अच्छे हैं। मासूमा सरशार होती निगाहें झुकाए बोली, नहीं जाना, तुम्हारे साथ ने हमें ऐसा बना दिया है, वरना मैं तो इतना अच्छा नहीं था। जानती हो, अम्मी के बाद तुम वो औरत हो जिसके लिए मेरे दिल में दिन ब दिन एहतराम बढ़ता गया। अच्छी तुम हो, बल्कि बहुत अच्छी हो। अगर तुम अपनी ज़ुबान से सख्त अल्फाज बोलती थी तो मैंने भी तुम्हें तकलीफ़ दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और याद रखना, बाजिल शिराजी ने अगर वादा किया है तो मरते दम तक अपना वादा निभाएगा। वो मासूमा की नाक से अपनी नाक को मिस करता हुआ बोला। अब मासूमा ने अपने दोनों हाथों को बाजिल के चेहरे पर टिकाकर उसकी बेशिकन पेशानी पर मोहब्बत से मोहर साब की। मासूमा की कार्रवाई पर बाजिल के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा, जबकि अब मासूमा एक हाथ बाजिल के सीने पर रखती अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका गई। मुझे इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक नहीं छुपानी चाहिए थी आपसे, आपको बुरा लगा ना? वो लहजे में शर्मिंदगी लिए बोली थी, जबकि बाजिल एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल किए दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। जो मैंने छुपाया वो भी बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो चंद पल अजियत पहुंची, मगर तुमने 5 माह अजियत में गुजारे हैं। मैं समझ सकता हूँ कैसे कैसे ख्याल और बदगुमानी मेरे मुतालिक तुम्हारे दिल में आई होगी। इस हिसाब से ज़्यादा गलती मेरी थी। बहरहाल अब ये बातें मत सोचो और अपने दिमाग को हर टेंशन से दूर रखो। बाजिल उसके बालों पर लब रखता मोहब्बत से चूर अंदाज में गोया हुआ, जाना बाप बनने का एहसास कितना खूबसूरत है, ये आज मालूम हुआ मुझे। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगा, इतना कि जितना मुझे मेरे बाप ने ना दिया। दुनिया की हर खुशी दूंगा, और मेरे बेबी की मामा का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। वो मुस्कुरा कर बोला था। मासूमा के चेहरे पर हया के रंग बिखरे। आप खुश हैं ना? मासूमा झिझकते हुए पूछ रही थी। लफ्ज़ मेरी खुशी बयान कर ही नहीं सकते। आज इस खूबसूरत एहसास ने चंद पल में ही मेरे दिल में मज़ीद तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी है। बेसब्री से मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब मैं अपनी औलाद को अपने सीने से लगाऊंगा, बाजिल खोए खोए अंदाज में बोला था।